Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 9/10/2020. I am teaching you chapter number 16 and the name of the chapter is Weather and Seasons. Okay. So, take out your book, open page number 86 and take one rough copy with you. What I am teaching on the board, you can note down that point in your rough copy for your better understanding. These points will help you to understand the topics in a simple way. So, many students are in confusion. They are asking me in online classes. बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो गई है, सर ने कहा कि बोर्ड पे जो लिखता हूँ वो नोट कर लो. तो बेटा बोर्ड से जो नोट करना है आपको, जो मैं चैप्टर में पढ़ाते समय बता रहा हूं, दिस थिंग यू विल राइट इन रफ कॉपी. एक ऐसी रफ कॉपी बना लो, ईवीएस के नाम से एक रफ कॉपी बना लो एंड यू कैन राइट इन दैट. अदरवाइज इन द सेम कॉपी इफ यू स्टार्ट राइटिंग ऑल द सब्जेक्ट देन यू विल बी कंफ्यूज. एक छोटी सी जैसे टेस्ट कॉपी होती है वैसी एक रफ कॉपी बना लो फॉर द सब्जेक्ट ईवीएस एंड इन दैट कॉपी यू कैन नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बोर्ड. अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है. वी विल नॉट राइट दिस थिंग्स इन आवर क्लास वर्क कॉपी. इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? वी विल नॉट राइट these notes in our classwork copy. In classwork copy you will write only question answers of the chapter and the diagram of the chapter. ठीक है, आपको क्लासवर्क कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं बेटा और डायग्राम बनाने हैं, ठीक है. और जो मैं नोट्स दे रहा हूं आपको बोर्ड पे, दिस नोट यू कैन मेक वन कॉपी and in that copy you can note down this important points. Okay, so before starting student today topic, let do the recapitulation what we have done in our previous video. So student, in our previous video we are discussing which season. How many seasons we have? We have 5 seasons. How many seasons we have? We have 5 seasons. Winter, spring season, rainy season, or you can also say monsoon season, summer season, autumn. So these are the 5 seasons. So student, in previous video we are discussing about summer. So what is summer? Out of, so student, if someone asks you which is the hottest season of the year, then what answer you will give? Yes, your answer is right. The hottest season of the year is summer season. Okay,
This is the hottest season of the year. Now second question arises, it begins from which month and it continues to which month? So it begins in the month of April. Okay, it begins month of April and it continues till June. First question become hottest season of the year, summer season. When it begins in the month of April and it continues till June. Okay. And what is the another important thing about this season is that the wind blow that is very hot. The wind blow that is very hot. And student, this hot wind is called it Lu. Hot wind is called it which blows at the time of summer season, that is known as Lu. And especially at that time, what do the people do? The people stay inside their houses to save themselves from this warm air which blow in the month of April, May, June, and this is known as Lu. Is it clear? So, and the next thing, I already told you that our eating habit, the clothes we wear, and the activities which we do, that also depends upon the different seasons. Is it clear? So student, especially in a summer season, we drink lot of cold drinks also, ice cream, and we eat fruits which contain lot of water. Why such things we are taking in the summer season? Reason is that the weather is very hot, and due to this lot of water from our body comes out in the form of a sweat. क्योंकि वेदर जब बहुत हॉट होता है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, तब हमारी बॉडी से आप देखते हो बहुत वाटर ऐसे लगता है निकल रहा है, इसे क्या बोलते हैं? स्वेट बोलते हैं, पसीना आना. ठीक है. सो वी ईट सच थिंग्स इन दिस सीजन which help us so that we maintain the level of water in our body. ठीक है. अगर हम लोग ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा वाटर हो, तो इतना ज्यादा स्वेट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर. सो हमारी बॉडी में जो वाटर का जो है वो क्या है, लेस हो जाएगा. सो टू मेंटेन the level of water in our body, we eat such types of things which contains lot of water. ठीक है. ऐसा नहीं है बेटा कि हम सिर्फ ड्रिंक करते हैं तभी हमें वाटर मिलता है. जो आप फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, दैट उनमें भी वाटर होता है. इज इट क्लियर? क्योंकि आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने प्रोसेस बताई थी, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड in the presence of
sunlight, air में which gas they are taking? Carbon dioxide. Water, they are taking water from the soil with the help of their roots. Is it clear? So the fruits which we are eating in a summer season, that also contain lot of water in them. Is it clear? So, and especially in summer season, children enjoy स्विमिंग आल्सो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड आपने देखा होगा व्हेन वी टेक ए बाथ इट मेक्स आवर वी फील कूल. ठीक है. सो टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी आल्सो वी टेक बाथ मेनी टाइम्स इन ए डे इन अ समर सीजन. एंड इवन स्टूडेंट, and that is the reason those areas which are known as a hot area, so the people of that areas visit to hill station also at the time of summer holidays. And that is the reason in that areas where the weather is very hot, so in that area holidays are also given to the children in summer season. हॉलीडेज आर आल्सो गिवन. देखो वेदर पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं. जैसे जो हिल माउंटेन्स एरियाज हैं, माउंटेन्स एरिया में जब समर डेज चल रहे होते हैं, समर सीजन होता है, देन एट देयर द वेदर इज वेरी प्लेजेंट. वहां वेदर प्लेजेंट होता है. ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स एरिया में सनलाइट नहीं होती, धूप गर्मी नहीं होती. बट हाउ द डिफरेंस क्या है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, जहां से हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रह रहे हैं, यहां क्यों इतनी ज्यादा हीट लगती है? क्योंकि यहां लू चलती है. द वार्म एयर विच ब्लोज एट द टाइम ऑफ ए समर सीजन, जिसे हमने आपको क्या बताया, रब कर दिया, लू. लेकिन जो माउंटेन्स एरिया है वहां भी समर में गर्मी होती है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इन दैट माउंटेन्स एरिया like a hot area, the wind blow that is warm, and this wind is known as loo. So this does not happen in mountains areas. माउंटेन्स एरिया में समर सीजन्स में लू नहीं चलती जैसा कि हॉट एरियाज में होता है. आ गई बात समझ में? सो अकॉर्डिंग टू द, अभी क्लाइमेट तो खैर अभी हम सीजन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम क्लाइमेट बताएंगे. नहीं तो अभी अगर मैं आपको क्लाइमेट बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, पहले सारे सीजन पढ़ लो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन अ सीजन एंड द क्लाइमेट. ठीक है, तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीजन एंड क्लाइमेट. जैसे अब यूपी एरिया है, यहां क्या बोलते हैं, बहुत हॉट एरिया है, बहुत हॉट एरिया है. तो क्या इसका मतलब यहां ठंड होती ही नहीं है? होती है ठंड बेटा. अब देखो आ गया अक्टूबर, नवंबर से अब देखो धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो जाएगी. नवंबर लास्ट में जाते जाते सब स्वेटर्स वेयर करने लगेंगे. ऐसा नहीं है कि यूपी हॉट एरिया है तो यहाँ क्या है, ठंड नहीं होती. होती है बेटा. फिर भी हम इसे हॉट एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहां गर्मी होती है. इज इट क्लियर? जैसे माउंटेन्स एरिया है, हिलीज एरियाज को हम लोग बोलते हैं कोल्ड होते हैं, टेम्परेचर इज वेरी कूल. तो ऐसा नहीं है कि वहां समर सीजन में गर्मी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम वहां क्या होता है, कोल्ड ही टेम्परेचर होता है. इसलिए हम लोग माउंटेन्स एरिया को बोलते हैं कोल्ड एरिया. और ये यूपीज एरिया है, ऐसा नहीं यहां ठंड नहीं पड़ती, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहां कैसा वेदर होता है, बहुत गर्मी होती है. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हॉट एरियाज, हॉट. इज इट क्लियर? ये अभी और डिटेल में बताएंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द क्लाइमेट. क्लियर? एंड सी, सो इवन एट द टाइम ऑफ ए समर
पीपल गो टू हिल स्टेशंस बिकॉज एट दैट टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हिल स्टेशंस पे जो वेदर होता है बहुत ही प्लेजेंट होता है क्योंकि वहां आपको लू नहीं मिलेगी जो स्पेशली आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी। ठीक है, जो स्पेशली आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाले इंडिया के जो एरिया हैं वहां आपको स्पेशली क्या मिलती है, लू, वार्म एयर, इससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। दैट इज द रीजन इन द आफ्टरनून पीपल अगर वर्क होता है देन ओनली दे कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज, अदरवाइज दे रिमेन इनसाइड द हाउस स्पेशली इन द आफ्टरनून टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट सीजन which in summer now the next season which comes after summer season that is known as monsoon or you can also say rainy season। जून के बाद या जून के एंड से आप देखोगे मॉनसून्स आ जाते हैं और सब जगह रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मॉनसून सीजन आल्सो। Now let's discuss what is a monsoon season. So after summer season is followed by the another season that is known as monsoon season. Is it clear, student? Now see what happens in the summer season. Due to high temperature the land become very hot. कंटिन्यूस 2-3 मंथ्स तक इतना हाई टेम्परेचर होता है कि लैंड बिल्कुल क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इज इट क्लियर? नाउ सी इन समर्स, ओपन पेज नंबर 86 पेज ओपन कर लो। बिकॉज बिफोर मॉनसून व्हाट इज द सीजन? समर। सो इन समर्स द लैंड बिकम्स वेरी हॉट ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। That wind blows over the sea and picks up water vapor. These winds then blow back towards the land. The water vapor cools down and falls down as rain in the months of July, August and September. Okay. So दिस इन डिटेल स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड, जो आपके बुक में जैसे दिया है कि द विंड ब्लोज ओवर द सी एंड पिक्स अप वाटर वेपर। ओके, फिर नेक्स्ट इट इज रिटर्न दीज विंड्स देन ब्लो बैक टूवर्ड्स द लैंड। द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड फॉल्स डाउन एज रेन इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो देखो शॉर्टकट में वो तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने आप लोग को वाटर साइकिल स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन व्हाट्स हैपन? वाटर बिकम हॉट एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर। ये चीज मैंने आप लोग को बताई थी ना। बट व्हेन दीज वाटर वेपर come in touch of a cool air, then what happens? These water vapor again change in the form of a water and this process is known as condensation. And now when the weight of these drops become very heavy, then what happen? It comes down in the form of a rain.
अब ये जो आपसे बेटा बुक में आपको बताया है कि विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी एंड अगेन इट ब्लो बैक टू द लैंड एंड वाटर बिकम वेपर बिकम कूल एंड इट स्टार्ट रेनिंग। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाई ना, आप इस ढंग से समझ लो, क्योंकि द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, दैट इज नोन एज लैंड ब्रिज, एंड द if the wind is blowing from the sea to the land, that is known as sea bridge. So this further complete topic you will study in class 4th। अभी आप जैसे मैंने वाटर साइकिल के एग्जाम्पल से बताया, आप इसको अभी ऐसे समझ लो। ठीक है, फुल आपको एक्सप्लेनेशन लैंड ब्रिज क्या होती है, सी ब्रिज क्या होती है, यू विल गेट इन क्लास 4th, बट थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, बोला इसने ना कि लैंड से सी की ओर गई हवा। ठीक है, तो अब काफी लंबा है इसका, इसीलिए मैं, चलो फिर देखो, जब सनलाइट आती है, ठीक है, इट फॉल्स ऑन द वाटर आल्सो एंड इट फॉल्स ऑन द लैंड आल्सो। ठीक है, जैसे हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, सनलाइट सब पे तो गिरती है, ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर से ये बनता है चार्ट कि आज इसी चीज पे गिरना है, बाकी चीजों पे नहीं गिरना है, ऐसा नहीं ना है। सो व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द लैंड, इट आल्सो फॉल्स ऑन द वाटर बॉडीज भी। वाटर बॉडीज क्या है अर्थ पे? रिवर्स हैं, पाउंड्स हैं, लेक्स हैं, सी हैं, ओशंस हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, लैंड जो होता है वाटर से बहुत जल्दी हीट हो जाता है। इसमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को समझने के लिए यही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके, इसीलिए क्लास 3 में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है इसका, कि लैंड से एयर कहाँ गई, सी पे, और जब वो वापस आई तो वो वाटर वेपर कूल हो गए और इससे रेन हुई। ठीक है, सो उसका रीजन क्या है, देखो सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाता है, वाटर को हीट होने में टाइम लगता है। अब बेटा लैंड की स्पेशलिटी क्या है, वो जल्दी हीट होता है तो वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। वाटर बहुत टाइम लेता है हीट होने में, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कूल होने में भी तो टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट इसके बेस पे है, व्हाट इज लैंड ब्रिज एंड व्हाट इज सी ब्रिज। सो अब देखो, स्पेशली मॉनसून सीजन्स क्या दिए हैं आपके, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मॉनसून सीजन दिए हैं इसने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, ये मॉनसून सीजन्स दिए हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ अ रेनी सीजन, देखो देयर आर रेनफॉल and the amount of rainfall also differ in different areas। ऐसा नहीं है सब जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है रेनी सीजन में, बट देयर आर सम एरियाज वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल। और जब बहुत ज्यादा रेन होगी, बहुत ज्यादा रेन होगी, तो रिवर्स का वाटर क्या है, इट स्टार्ट फ्लो आउट फ्रॉम द रिवर। रिवर से बाहर वो फ्लो करके अगल बगल के लैंड्स को कवर करने लेगा। ऑल द थिंग्स सबमर्ज्ड इन दैट वाटर ऑफ द रिवर। मतलब रिवर के वाटर में अगल बगल के जो रिवर के जो लैंड होगा, वो सारी जगह क्या सबमर्ज, मतलब उसमें उस अगल बगल के लैंड पे मान लो हाउस है, बिल्डिंग है, कुछ भी है। आप लोग ने देखा ना, एवरी ईयर एट द मॉनसून टाइम देर इज लॉट ऑफ वाटर इन द गंगा रिवर, and when there is lot of water in the river, then it start coming out from the river and it start covering the land surrounded by the river।
और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लड्स। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लड्स। क्योंकि रिवर में ऑलरेडी वाटर होता है और जब हैवी रेनफॉल होगी तो जब बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा तो अब वो वाटर क्या होता है, इट स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द रिवर। रिवर से वो साइड के जितने भी लैंड हैं उन उन सब में उन सबको कवर कर लेगा, सबमर्ज कर देगा, मतलब सारा अगल बगल का लैंड जो है पानी में डूब जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड्स बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग को मैंने हाउसेस चैप्टर में भी बताया था, हाउसेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तुम लोग को याद आ रहा है? हाउसेस आल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस। मैंने तुम लोग को बताया था ना, द एरिया वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल मतलब भार से मतलब नहीं है कि उसका वेट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है जहां, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था, इन दैट एरिया पीपल मेड विच टाइप ऑफ ए हाउसेस, दैट इज स्टिल्ट हाउसेस। याद आ रहा है आप लोग को? हाउसेस चैप्टर में मैंने बताया था जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां उस एरिया में पीपल कैसे हाउसेस बनाते हैं? स्टिल्ट हाउसेस। मतलब नीचे से वुड का सपोर्ट करके उसे ऊंचा कर देते हैं और फिर ऊपर, जिससे कि जब फ्लड रिवर का वाटर आए तो वो नीचे ही से पास हो जाए, ये वाटर नीचे ही से पास हो जाए और इसके ऊपर वो लोग घर बनाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे नीचे सपोर्ट दे दिए बड़े बड़े और इसके ऊपर हाउस बना दिया। अब व्हेन द रिवर वाटर कम आउट एट द टाइम ऑफ मॉनसून सीजन, फ्लड्स जब आएंगी तो वाटर विल फ्लो बिलो द हाउस। ठीक है, तो हाउसेज आल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड स्पेशली सिल्ट हाउसेज यू हैव फाउंड इन विच एरिया। स्पेशली ये आपको असम में देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप बहुत छोटे छोटे हो, अभी आप उतना ज्यादा न्यूज नहीं देखते हो। ऐसा नहीं है, असम में 1 ईयर और 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर 5 ईयर ऐसे आती है फ्लड्स। ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहां एवरी ईयर इट हैपेंस, इसीलिए इन एरियाज को बोला जाता है कि यहां हैवी रेनफॉल हो, एवरी ईयर फ्लड्स कम। जैसे बिहार है, एवरी ईयर फ्लड्स कम। रिवर कोसी है, ठीक है, सो फ्रॉम दैट रिवर जब वो टर्न लेती है तो उसका वाटर आ जाता है इंडिया में। ठीक है, नेपाल से होके आ रही है ये रिवर। ठीक है, ये माउंटेन रिवर है, हिमालय से आ रही है क्योंकि हिमालय नेपाल में भी है। ठीक है, तो कोसी रिवर है, दैट वाटर, जो ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इसका जो ये कोसी रिवर है इसमें इतना ज्यादा फ्लो होता है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द हिमालयस। तो नेपाल से जब ऐसे टर्न लेके आती है तो इसका पूरा वाटर इंटर करता है बिहार में एंड एवरी ईयर मैनी विलेजेस सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज्ड इन वाटर मीन्स पानी में डूब जाते हैं। जैसे कोई चीज है पानी में डूब गई, अब दिखाई नहीं दे रही है, उससे कहेंगे, मतलब दिखाई दे भी रही है, मान लो आधी डूब गई होगी, पूरी नहीं डूबी होगी, तो जो भी चीज पानी में डूबती है उससे क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड। ठीक है, सो मेनी विलेजेस ऑफ बिहार एवरी ईयर सबमर्ज्ड इन द फ्लड वाटर एंड दैट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द रिवर कोसी, हिमालयन रिवर है ये। हाँ, तो ये आगे पढ़ोगे, अभी इतना यहां तक के लिए हो गया। अब देखो नेक्स्ट है पीपल जूस। अब देखो स्पेशली हाउ वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन दिस सीजन। ठीक है, एक तो आंसर आपका हो जाएगा वी आर इन आवर हाउसेस सो वी आर सेफ। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हाउस हमें हर्ष वेदर से बचाता है। जैसे बहुत गर्मी है, हॉट से बचाएगा, बहुत रेन हो रही है, रेन से भी बचाएगा, इफ इट इज वेरी कोल्ड देन ऑल्सो इट सेव अस। सो दैट इज द रीजन वी नीड ए हाउस। एक तो हाउस हो गया, बट बाई चांस इफ यू हैव टू गो टू स्कूल और यू हैव टू गो टू योर वर्किंग प्लेस, तब आप क्या करोगे? सो एट दिस सीजन पीपल यूज रेनकोट।
एंड अम्ब्रेलास। तब क्या यूज करते हैं हम लोग? व्हेन एट द टाइम ऑफ रेन वी हैव टू गो आउटसाइड फ्रॉम आवर हाउस, देन व्हाट थिंग्स वी यूज? ओके, सो स्पेशली इस सीजन में, रेनी सीजन में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास। ठीक है, और मैक्सिमम तो देखा जाए हम लोग, देखो बच्चे यही यूज करते हैं रेन कोट्स, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू कैरी आल्सो। बहुत आराम से फोल्ड होके बैग के अंदर रख लिया। ठीक है, जब तक रेनी सीजन है, डेली इन द बैग स्टूडेंट ब्रिंग देयर रेन कोट विद देम, क्योंकि अब अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला इज आल्सो गुड थिंग, बट ऑल द टाइम यू हैव टू कैरी दिस विद योर हैंड, कैरी करने पड़ता है हैंड में। इज इट क्लियर? सो बट दिस इज वेरी सेफ। रेनकोट क्या है? बहुत सेफ है। आप इसे आराम से, जैसे कॉपीज और बुक कैरी करके घर से लाते हो, व्हेन इट इज ए रेनी सीजन, आपको पता है इस समय आपके यहाँ मानसून सीजन चल रहा है, तो आप डेली लाइक ए बुक एंड कॉपीज ऑफ योर बैग, you can carry this raincoat also inside your bag in the monsoon season. Is it clear? Now see, people use raincoat and umbrellas. Flood occur in some places where there is too much rain. जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया, जब बहुत ज्यादा रेन होती है एंड देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर, इट स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द रिवर एंड इट कवर द ऑल द लैंड अराउंड दैट रिवर। रिवर क्या करती है? अपने अगल बगल जो भी लैंड होता है, तुम लोग ने देखा ना, सभी रिवर्स के रिवर बैंक होते हैं, किनारे होते हैं। आप गंगा जी गए होगे, देखे होगे, घाट हैं, कितने घाट हैं वाराणसी में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। जब आती है मॉनसून सीजन में, व्हेन द फ्लड्स कम, मैक्सिमम ऑल द थिंग्स सबमर्ज्ड इन द रिवर गंगा वाटर, क्योंकि वाराणसी में विच रिवर इज इट? रिवर गंगा। ठीक है, और भी रिवर है, लेकिन मेन जो है दैट इज वाराणसी इज नोन फॉर रिवर गंगा। अब देखो, फ्लड ऑकर इन सम प्लेसेस वेयर देयर इज टू मच रेन। जहां बहुत रेन होती है वहां फ्लड्स आते हैं। अनदर गुड थिंग इज इट इज गिवन रेन हेल्प्स फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स। देखो क्रॉप्स लगाने के लिए, देखो एक छोटा सा पेड़ आप एक छोटे से गमले में लगा सकते हो, क्रॉप्स बड़ी बड़ी फील्ड्स में लगती हैं। इज इट क्लियर? और आप सोचो कि एक बकेट से पूरे फील्ड में पानी डालने, इट इज नॉट पॉसिबल। आप देखते होगे फार्मर्स आर यूजिंग ट्यूब वेल्स आल्सो, ओके, एंड देयर आर कैनल्स आल्सो, नहरें भी हैं। आप विलेजेस में कभी जाओगे गर्मी की छुट्टी में, तो देखना आपके विलेज में भी नहर होगी, और इस नहर में कहाँ से पानी आता है? डैम से आता है। जब एक्सेस वाटर होता है ना, रेनफॉल होती है, उस समय वाटर जो होता है रिवर्स का, उसको स्टोर कर लिया जाता है, रिवर्स पे ही डैम बनते हैं, एंड दिस वाटर इज आल्सो यूज्ड बाय द फार्मर फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।